shall we turn to the book of Psalm, अब हम तेहलीम की किताब खोलेंगे and we turn to 18th Psalm, Psalm 18, तेहलीम की किताब बाब नंबर 18 and we will just read verse 1. और सिर्फ आयत नंबर 1 पर हम तवज्जो करेंगे। Psalm 18 and verse 1. तेहलीम की किताब 18 की 1। All together, please. सब मिलकर पढ़ेंगे। I ऐ will love यहोवा, thee, ऐ O मेरी Lord, कुव्वत, my मैं strength. तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। Once more, और एक बार, I ऐ will love यहोवा, thee, ऐ मेरी O Lord, कुव्वत, my मैं strength. तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, ऐ हमारे प्यारे we खुदावन thank and आसमानी praise बाप, you for gathering us together this evening, being the first day in the 6th month, around thy table to worship you. छठे महीने में पहला इतवार को आपके करीब आकर, पहले दिन को आपके करीब आकर, आपकी मेज के इर्द गिर्द आकर आपकी इबादत करने का मौका देने के लिए शुक्र अदा करते Thank you हैं। for your faithfulness throughout the past 5 months of this year. गुज़श्ता 5 महीनों में आपकी वफादारी हमारे साथ रखने के लिए शुक्र अदा करते हैं। And also for your goodness and favor the last month and even the last week also. और गुज़श्ता महीने में और हफ्ते में भी हमारे साथ आपकी नेकी और भलाई रखने के लिए शुक्र अदा करते And हैं। we thank you, Lord, we could gather together here in Yehovah Shammah and also join the worldwide worship in bringing our praises and worship to you. यहोवा शम्मा में शामिल होकर और दुनिया भर में आपके मोमिन लोग आपकी इबादत जो गुजार रहे हैं उनके साथ भी शामिल होकर आपकी इबादत करने का मौका देने के लिए भी शुक्र अदा करते We हैं। believe, Lord, that was heard and you have been pleased with our worship. खुदावंद, आप हमारी इबादत सुने हैं और हमारी इबादत आपके यहाँ मंजूर ठहरी है करके शुक्र अदा करते We हैं। know, Lord, any amount of our worship is not adequate. खुदावंद, कितनी भी इबादत हम पेश करें वो काफी नहीं होती है। Even though we have to worship you with thousands of lips and even for all eternity, even that is not sufficient. हजारों लबों से अगर हम आपकी इबादत हमेशा के लिए भी करते रहें तो भी खुदावंद ये हमारा कर्ज अदा नहीं होगा। But we believe, Lord, you have heard our words of worship here in Yehovah Shammah this evening. फिर भी आज शाम को हमारी इबादत यहोवा शम्मा से आज शाम को आपने कबूल किया करके हम आपका शुक्र अदा करते हैं। And we now thank you, Lord, for the table you have placed in our midst. खुदावंद, ये जो मेज आप हमारे दरमियान रखे हैं इस मेज को लेकर भी शुक्र अदा करते हैं। A table of remembrance. ये यादगारी की मेज है। A table showing about the death of the Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ की मौत का इजहार करने वाली मेज है। And also a death proclaiming the glorious coming of the Lord Jesus again. और हमारे खुदावंद यीशुआ फिर से आएंगे करके उनकी मुबारक आमद की यादगारी की मेज होने के लिए शुक्र अदा करते हैं। And it is also a table to examine ourselves. और हमको अपने आप को परखने की मेज होने के लिए शुक्र अदा करते हैं। And also we thank you, Lord, for your desire that before we leave thy house and the premises here, that thou would feed us and would not send us away empty from your presence. खुदावन, हम आरजू रखते हैं कि आपके घर के फाटक को छोड़कर बाहर दाखिल होने से पहले आपसे आरजू रखते हैं कि आप हमें हमारी रूहानी ग़िज़ा जरूर बख्शेंगे। We are poor and needy. हम मिस्किन हैं, हम आजिज हैं, We are hungry too. हम भूखे भी हैं। And no one can satisfy us other than you and also your word. आप और आपके कलाम के अलावा हमें और कोई भी हमें सैर नहीं कर सकते हैं। So therefore, O Lord, very expectantly, eagerly, we are looking to you that thou may feed us and satisfy us. खुदावंद, इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें ग़िज़ा बख्शें और हमें कवी बनाएं। Be gracious to both of us. Grant your word, O Lord, that it may be conveyed in all simplicity and clarity. खुदावंद, हम दोनों पर अब अपना फजल अता करें और आपका कलाम आपके लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमाएं। Give us your grace to not only receive your word but also to obey your word. आपका कलाम सिर्फ कबूल करना ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने का फजल हम पर अता फरमाएं। We ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मर्द जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. Psalm 18 and verse 1. तेहलीम की किताब 18 की 1। Now the words of this psalm, they are from the great man of God, King David.
ये बातें जो हैं यहाँ पे इस मजमूर में, ये बहुत अजीम बादशाह दावीद की बातें हैं। This was actually a song as we read in the introduction to the psalm. यहाँ पे अगर हम इस नगमा के शुरुआत में अगर हम पढ़ेंगे तो ये एक गाना है ये। And he sang this song after the Lord delivered him from all his enemies. दावीद को जब खुदावन ने अपने सब दुश्मनों से रिहाई बख्शी, तब दावीद ने ये नगमा गाया था। It's quite a long psalm. ये बहुत लंबी नगमा Not very है। long, but a long psalm. बहुत लंबी नहीं, लेकिन लंबी नगमा But है। see how this psalm is beginning in verse 1. लेकिन पहली आयत में हम देखते हैं कि इस नगमे को दावीद कैसे शुरू करता है। It is his personal experience. ये दावीद का तजरिबा है, निजी तजरिबा And he है। says here, I will love thee, O Lord, my strength. वो कहता है यहाँ पे, ए यहोवा, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। Or in other words, he says, I will love you, O Lord, because you are my strength. और मजीद अल्फाजों में इसका मतलब ये होता है कि ए खुदावंद, तू मेरी कुव्वत है, इसीलिए मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। David experienced the Lord in many ways. दावीद ने खुदावंद यहोवा को बहुत तरीके से आजमा कर जाना था। And one of that was to experience the Lord as his strength and also experience his strength in his life. और उनमें एक तजुर्बा ऐसा है कि खुदा की कुव्वत को जाना और खुदा को अपनी कुव्वत करके उसने अपनाया। And that is why in other places also he mentions the same thing. इसीलिए दूसरी जगहों में भी इसी बात को दोहरा के बताता भी है। If you read in Psalm 46 and verse 1, अगर आप पढ़ेंगे तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 46 और आयत नंबर 1 पढ़ेंगे, there the sons of Korah, they are also saying the same. यहाँ पे कोरा के बच्चे जो हैं वो लोग भी यही गाते हैं। And that is why that verse is in the plural. इसीलिए वहां पे उस वर्स में प्लूरल हम देखते हैं। They say God is our refuge हाँ, वो कहते and हैं, strength. वो कहते हैं खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। So God is the strength of individual believer and also collectively too. तो इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भी खुदा यीशुइयों का मोमिनों की कुव्वत है। This evening we are going to see how the Lord can become personally our strength. आज शाम को हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा इनफिरादी तौर पर निजी तरीके से हमारी कुव्वत कैसे बनता है। And some of them we'll see in the life of David himself. और इनमें से चंद बातें हम दावीद की जिंदगी से हम देखेंगे। First of all, पहली बात, in Psalm 27, तेहिल्लिम की किताब बाब नंबर 27 verse 1. आयत नंबर 1, See what David says here. वहां पे दावीद क्या कहता है Psalm देखें। 27 and verse 1. मज़ामिर की किताब तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 27 वर्स 1, All together, please. सब मिलकर पढ़ेंगे। The Lord is यहोवा my मेरी light रोशनी and और my मेरी नजात है, salvation. मुझे किसकी Whom shall I दहशत। fear? यहोवा The मेरी Lord is the जिंदगी का strength of my पुश्ता life. है, मुझे Of whom किसकी shall I be भय। afraid? In other words, what David is saying is that यहाँ- because the Lord is his strength, he is not afraid. यह दावीद क्या कह रहा है, क्योंकि खुदा मेरी कुव्वत है, मुझे हैबत या दहशत नहीं। That's why he is asking this question, whom shall I fear? इसीलिए वो सवाल पूछ रहा है, मुझे किसकी दहशत। David had many enemies. दावीद को तो बहुत सारे दुश्मन थे। He had a great enemy in Saul himself. साउल ही बहुत बड़ा दुश्मन था दावीद And का। also we all know how David had this enemy, Goliath, against whom he went. और हम इस बात को भी जानते हैं कि दावीद ने एक बड़े दुश्मन मुखालिफ गुलियात का सामना भी किया था। And how did he go against Goliath? और गुलियात का सामना उसने कैसे किया था। We saw on the one side Saul and all his people, they were afraid of Goliath. और हम वहाँ नजारा देखते हैं कि एक तरफ साउल और उसके सारी लश्कर जो थी वो सब डर के मारे बैठे हुए थे। You know how Goliath was challenging the children of Israel for 40 days. हम जानते हैं कि तकरीबन 40 रोज तक गुलियात आकर इस्राएलियों पर एक चैलेंज डालकर जाता था। He was coming down in that valley वो उस वादी में उतर कर आता था and he was roaring like a lion. और एक शेर की तरह दहाड़ कर बोलता He था। did not talk for a long time. वो बहुत लंबी बातें नहीं करता He था। threw only a two-sentence challenge
to Saul and his men. सिर्फ और सिर्फ 2 जुमले में बात करता था और साउल और उसके लश्कर के सामने ये चैलेंज फेंकता था। He said, first of all, choose one man for वो you. कहता था पहले कि अपने लिए एक इंसान को तुम लोग चुन लो, Secondly, he said, send that man here. और दूसरी बात कहता था उसे मेरे पास भेज। And when he threw this challenge, और जब ये चैलेंज फेंकता था, Saul is actually an accomplished warrior and a champion himself. साउल तो खुद एक बहुत अच्छे चैंपियन था और जंग करने वाला था। He defeated other kings also. बहुत सारे बादशाहों को भी उसने हराया था। He wrought victory even against the Philistines. फिलिस्तीयों के मुखालिफ होकर उनके खिलाफ जाकर जंग छेड़कर जीता भी था। But in 1 Samuel and chapter 17, लेकिन 1 सैमुएल चैप्टर 17 में he did not have courage, he did not have strength. हम देखते हैं कि उसके सामने दम नहीं था, वो कुव्वत नहीं थी। And they were all greatly afraid, from the king to the last man. और हम वहां देखते हैं कि बादशाह से लेकर आखिरी इंसान तक सब लोग डर से मारे रहे And थे। then later on we see that as this man was continuously challenging the children of Israel, और हम बाद में देखते हैं कि जैसे ही ये इंसान आकर बार बार इसराइलियों के सामने ये चैलेंज फेंकता था। in verses 24 and 25 of 1 Samuel chapter 17, हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 17 में 24-25 वर्सेस में that even they ran away from him. हम वहां पढ़ते हैं कि वो लोग उसके सामने से भागकर चले गए। Why? What was the reason? क्यों? वजह क्या थी? They had no strength in them. क्योंकि उनमें ताकत या कुव्वत नहीं And थी, that is why they were afraid of this man. इसीलिए उस आदमी को देखते ही वो लोग कांप जाते थे। But what about David? लेकिन दावीद की हालत कैसी He थी? also came to that scene. वो भी उस मंजर में, उस नजारे को देखने के लिए He आया also था heard the words of this Goliath, the champion. और उस गोलियात की बातें इसने भी सुनी थी। And instead of being frightened like others, लेकिन बाकी लोगों की तरह घबराने के अलावा there are many warriors and champions there in the battlefield. वहां हम देखें तो वहां बहुत सारे मर्दे जंग हैं, बहुत सारे लोग थे। They were accomplished warriors. वो लोग नामवार जंगजू थे। They were experienced warriors. वो लोग बहुत तजर्बे के साथ जंग लड़ने वाले थे। But even then they were all afraid. लेकिन सब के सब डर गए थे। But David was not afraid. लेकिन दावीद डरा हुआ नहीं था। That is why he says, whom shall I fear? इसीलिए वो कहता है मैं किससे डरूं? I will not fear. मैं डरूंगा नहीं। Why? What is the reason? क्यों? वजह क्या है? It is because the Lord is my strength. क्योंकि वजह ये है कि मेरा खुदा यहोवा मेरी कुव्वत है। And the Lord knows this need in our lives. हमारी जिंदगियों में भी हमारी हाजत खुदा जानता है। We are always confronted with fear. हम हमेशा डर का सामना करते रहते If हैं। we have to get over fear, we need to be strong. अगर डर को जीतना है तो हमें मजबूत बनना है। And that is why in the Word of God, the Bible scholars have counted 366 times the word fear not or do not be afraid comes. इसीलिए बाइबल के स्कॉलर्स जो होते हैं उन लोगों ने काउंट किया था बाइबल में और देखा था कि मत डर करके वो जुमला जो है वो तकरीबन 365 टाइम्स आता है। 66 times. 366 टाइम्स आता है। Why 366? 366 टाइम्स क्यों? It has included the leap year also. लीप ईयर के वास्ते भी लिखा हुआ है। How thoughtful and gracious the Lord is. खुदा कितना सोच कर ये बातें हमारे लिए तैयार So रखता है ना। every day we can take this word, fear not. तो हर दिन हम कलाम में से ये जुमला, ये बात पकड़ सकते हैं And कि this is मत डर। this is not coming from any man. और ये भरोसा जो है इंसानों से नहीं आता है, Not from an angel also. खुदा के फरिश्तों से भरोसा नहीं आता Because है। sometimes the angels were conveying this news or this encouragement. हालांकि बात यह है कि खुदा से जब बातें लेकर आते हैं फरिश्ते तो ये बातें पहुंच जाते थे, But it is actually from the Lord. लेकिन ये बातें खुदा से आती थीं। Fear not. मत डर, Do not be afraid. खौफ ना कर। And this is what gives us great strength. और ये बातें हमें बहुत ताकत देती हैं। So first of all, it is a fear dispelling strength from the तो Lord. पहली बात यह है कि ये हमारे दिलों में से
डर को मिटाने के लिए दिया गया खुदा का कलाम है। Then secondly, दूसरी बात, it is a girding strength. It is an armoring strength of the Lord. हमारी जिंदगियों में हमें एक आर्मर जैसा हमें बांध कर रखने वाला कलाम है। See the book of 2 Samuel and chapter 22 देखें 2 सैमुएल चैप्टर 22 and verse 40. और आयत नंबर 40। 2 Samuel chapter 22 दूसरा समूएल की किताब बाब नंबर 22 and verse 40. और आयत नंबर 40। See what we read here. For thou hast girded me with strength to battle. Them that rose up against me hast thou subdued under me. क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया है और मेरे मुखालिफों को मेरे सामने ज़ेर किया। These are again the words of King David. ये फिर से हम देखते हैं कि दावीद के अल्फाज हैं। He is speaking about the girding strength of the Lord in his own life. यहाँ अपनी खुद की जिंदगी में कमर बस्ता करने वाले खुदा की कुव्वत के बारे में जिक्र कर रहा We है। know David fought many battles in his life. हम जानते हैं कि दावीद अपनी जिंदगी में बहुत सारे जंग जीते, In no battle David was defeated. लेकिन उन सारे जंग में किसी भी एक जंग में भी दावीद हारा नहीं था, Because the Lord not only strengthened him, क्योंकि खुदा ने उसे कमर बस्ता करके उसको जीत दिलाई but the Lord also girded him with strength. और कमर बस्ता किया कुव्वत से। Again, we find an example of that in 1 Samuel chapter 17. फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 में भी इसका और एक एग्जाम्पल हम वहां देखते When हैं। David went against Goliath, जब दावीद गोलियात का उसके खिलाफ जाता है, before he went against Goliath, उसके खिलाफ जाने से पहले we know the story very well. हम जानते हैं कि वहां क्या हुआ, How David and his courageous statements were brought to the notice of King Saul. वहां हम देखते हैं कि दावीद जो दिलेरी से बातें कहता है, उन बातों को साऊल के कानों में लोग सुनाए। At the first instance, Saul wanted to discourage David also. पहली बात यह है कि जब साऊल सुनता है ये बातें तो दाऊद को वो थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहता He था। doesn't have strength and courage to go against Goliath. तो गोलियात के खिलाफ जाने की कुव्वत दावीद नहीं रखता, But when सोचा साऊल ने। But when a young man has come forward to go against Goliath, लेकिन साऊल की जगह में एक कमसिन लड़का, एक नौजवान आता है गोलियात से वार करने, उससे झगड़ने। instead of encouraging him and standing by him, उस वक्त उस कमसिन लड़के को उसकी हौसला अफजाई करके उसको कुव्वत बख्शने के जगह में see what Saul is telling David. दावीद को साऊल क्या कहता है, जरा सुने। Because David earlier gave a brief biodata about him. क्योंकि दावीद पहले ही अपना प्री बायोडेटा साऊल को बताता है। And now Saul says these words to David in verse 33. और अब देखते हैं कि वर्स 33 में कि साऊल क्या कहता है। The last part of that verse. इस आयत के आखिर में, For thou art but a youth, and he a man of war from his youth. क्योंकि तो महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द The है। first part he says, thou art not able to go against this Philistine. तो पहले ही वो कह देता है कि तू इस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने ना जा पाएगा। Saul is simply putting him down. साऊल उसको नकार रहा है In सीधा। other words, he says, you are not strong enough to go against Goliath. मजीद अल्फाजों में वो कहता है कि तू गोलियात का उसको फेस करने के लिए तू लायक नहीं है। Young man, look at my stature. हाँ, ओ ए कमसिन बच्चे, तू मुझे देख, Look at my strength. मेरी कुव्वत पर ध्यान दे, Look at my past experience. मेरे माजी में मेरा तजुर्बा जो है वो देख। I myself, I'm not able to go against him. मैं खुद इतना तजुर्बा रखते भी मैं उसके खिलाफ नहीं जा पाता। I'm feeling myself weak against this champion. इस चैंपियन को देखकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता So you हूँ, are not able to go. इसीलिए तू भी नहीं जा Then पाएगा। David had to share few things about him तब and the victories that he experienced in his life. दावीद क्या करता है, अपने बारे में कुछ सुनाता है और अपनी निजी जिंदगी
जिंदगी में जो फतेहयाबी उसने हासिल की है More उसके बारे में बताता है। More particularly, how he prevailed over the lion and the bear. खुसूसन वो रीछ और शेर के खिलाफ होकर उन पर कैसे जीता वो बताता है। Now, good thing Saul patiently heard all this. और अच्छी बात यह है कि दावीद के सारी बातों को साउल एहतियात से सुनता And है। in verse 17, और- 37, और वर्स 37 में कहता है, the last part of that verse, आखिर में see what he says here. देखिए यहाँ क्या हुआ। And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. साउल ने दावीद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। Finally, he is convinced. आखिरकार वो कन्विंस हो जाता है। He was able to find that David is actually stronger than him. वो कन्विंस हो जाता है कि दावीद अपने से मतलब साउल से भी ज्यादा ताकतवर है। So he's permitting him to go. इसीलिए परमिशन देता है कि तू जा। And if he had stopped with that, it would have been better. अगर वहां तो रुका तो अच्छा होता। But what is Saul doing here? लेकिन यहाँ साउल क्या कर Verse 38. रहा है? वर्स 38 में, And Saul armed David with his armor. तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खूद उसके सिर पर रखा। So what is Saul doing to David? साउल क्या कर रहा है यहाँ पे? He is girding him with his armor. अपने खूद और जिरा वो पहना रहा है। Or in other words, he is girding David with his strength. मतलब अपनी ताकत दावीद को देने की कोशिश कर रहा है। What is poor David doing? लेकिन दावीद क्या कर रहा है यहाँ He पे? has no other option than to accept it. उसे लेना ही पड़ रहा है उसे, Because it is coming from the king. क्योंकि खुद बादशाह ये बख्श रहा है। King is asking him to do that. ऐसा करने के लिए बादशाह खुद कहता है। He cannot disobey the king. बादशाह की नाफरमानी तो नहीं कर सकता And ना। poor David is wearing that armor. इसीलिए अफसोस की बात है कि दावीद वो पहनता है Try to go forward. और वो पहनकर आगे बढ़ने की कोशिश He is करता not है, able to march forward. आगे बढ़ ही नहीं सकता है। He is not feeling strong enough with this armor. ये आर्मर पहनने के बाद वो ताकतवर नहीं महसूस करता। Verse 39. आयत नंबर 39 में, And David girded his sword upon his armor, and he assayed to go. 39वीं आयत, और दावीद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की। But see what after that? उसके बाद क्या होता है देखें, For he had not proved it. क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। Because he is not accustomed to this armor. ये आर्मर जो है उसने कभी आजमाया ही नहीं He is था। not accustomed to this strength. ये ताकत जो है उसने कभी आजमाया ही नहीं था। What are we depending upon today? आज हम किस पर तकिया कर रहे हैं? What is the source of our strength? हमारी ताकत का सोर्स क्या है? What is our armor today? आज हमारा आर्मर क्या है? Are we having David's armor? क्या हमारे ऊपर दावीद का आर्मर है? Are we having the Lord's armor upon us? या खुदा का आर्मर हमारे ऊपर है? What is that armor? ये हथियार या It आर्मर is क्या the है? whole armor of God, as we read in Ephesians chapter 6. एफएससीओ में हम चैप्टर 6 में पढ़ते हैं कि ये खुदा का होल आर्मर ऑफ गॉड कहा जाता है। That is what David was wearing. दावीद यही पहन रहा है। That gave him the strength. यही दावीद को ताकत बख्शी है। And so what is happening in verse 39? और आयत नंबर 39 में क्या होता है? And David said unto Saul, I cannot go with thee. और दावीद ने साउल से कहा, मैं उनको पहनकर चल नहीं सकता। I cannot go with this. मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता। It is an armor. ये तो आर्मर है। It is a strong armor. ये तो बहुत ताकत बख्शने वाला आर्मर है। And whose armor it is? और ये किसका खुद है? Not his armor. ये उसका खुद का खुद नहीं It is है। King Saul's armor. ये बादशाह साउल का खुद है He has not proved it. और इसे उसने कभी आजमाया नहीं। And that is why he says, I have not proved them. इसीलिए वो कहता है मैंने इन्हें कभी आजमाया नहीं। And David put them off him. और तब दावीद ने उन सब को उतार दिया, Removed it. उनको निकाल दिया। Now what do you find David with? दावीद को आप किस खुद के साथ देखते हैं? His simple garments is there. उसके ऊपर सिंपल आम कपड़े हैं। In our Telangana Bhasha we can say, या हमारे तेलंगाना जुबान में हम कह सकते हैं he's a gollodu. गोल्लोड। What will the gollodu have? गोल्लोड क्या करता है? उसके पास क्या होता? Minimum clothing he will have upon him. उसके ऊपर कम से कम बहुत कम कपड़े होते That हैं। is all the armor David had. दावीद के पास सिर्फ उतना ही And- खुद या आर्मर था। That is what even Saul was able to notice in David. दावीद में साउल भी वही देख पाता था, Because Saul did not have spiritual sight. क्योंकि साउल को रूहानी नजर नहीं
नहीं थी, He had only a physical sight. उसके सामने सिर्फ जिस्मानी नजर थी। Saul was physically minded. साउल सिर्फ जिस्मानी तरीके से जीता था, David was spiritually minded. लेकिन दावीद रूहानी तरीके से जीता था। He had the armor of God. He had the spiritual armor upon himself. दावीद के साथ खुदा का स्पिरिचुअल खुद है। And so what is he doing here? इसीलिए वो क्या कर रहा है यहाँ He पे? is girded with the strength of the armor of the Lord. खुदा का खुद जो है उसकी कुव्वत से वो अपने आप को मुलब्बिस कर रहा है। This is not only available to David, dearly beloved. अजीजों, ये खुद जो है सिर्फ दावीद को ही मिलता नहीं It is है, available to every believer. लेकिन हर एक यीशुई मोमिन के लिए ये मौजूद है, मिलता है। There is no special qualification required for this. इसके लिए कुछ खास काबिलियत या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। As long as you are a child of God, जब भी आप खुदा के बच्चे बन जाते हैं, as long as you are a believer, जब आप खुदा के यीशुआ के मोमिन बनते as long हैं, as you love the Lord, जब तक आप खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखते this हैं, armor and the strength coming from this armor is your exclusive privilege. खुदावंद यीशुआ से ये ताकत जो आती है, ये खुद या आर्मर जो उनकी है, ये आपकी हो जाती है। So the strength of the Lord is a girding strength. तो खुदा की कुव्वत जो है वो हमें अपने ऊपर धरना है, मुलब्बिस होना है। And that is what David experienced. और दावीद इसी तजुर्बे में आता है। And that is why he mentions about that in 2 Samuel chapter 22 and verse 40. इसीलिए 2 सैमुएल चैप्टर 22 वर्स 40 में वो ये बात कहता है। Then thirdly, और तीसरी the बात, strength that the Lord gives us is a sustaining strength. ये कुव्वत जो खुदा हमें बख्शता है, ये हमें बरकरार रखने वाली कुव्वत है। Psalm 71 तहलीम की किताब चैप्टर 71 and verse 16. और आयत नंबर 16। Psalm 71 and verse 16. 71 तहलीम की किताब चैप्टर 71 और आयत नंबर 16। We do not know who the author of this psalm is. हम नहीं जानते कि किसने ये तहलीम लिखा था। It is an anonymous psalm, ये मजमूर बेनाम है, but I heard Bible scholars say this psalm could have been written by King David. लेकिन मैंने बाइबल स्कॉलर्स को कहते हुए सुना कि शायद दावीद बादशाह ने इस मजमूर को लिखा था। And so if that is true, अगर वो सच है, even if it is not true also, अगर सच में दावीद लिखा भी नहीं था, see what the writer of this psalm is saying in verse 16. लेकिन 16वीं आयत में ये मज़ाब नवीस यहाँ क्या कह रहा है, जरा देखें। I will go on in the strength of the Lord. मैं यहोवा खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। I will go on. मैं करते रहूंगा। Who is saying this? ये बात कौन कह रहा See है? verse 18. आयत नंबर 18 We देखें। get a clue here how old this man is. ये इंसान की उम्र, इस इंसान की उम्र वहां हमें दिखती है। He says, now also when I am old and grey-headed, O God, forsake me not. ऐ खुदा, जब मैं बूढ़ा और सिर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना। It's not a young man who is saying this. ये कमसिन इंसान नहीं कह रहा है, It's ये a grey-headed man. Old man is saying this. एक बूढ़ा इंसान ये बातें कह रहा He है। is also an experiencer of the Lord's strength. और ये इंसान खुदा की कुव्वत का तजर्बे के साथ ये कह रहा है। He says, I will go on in the strength of the वो Lord. कहता है कि मैं खुदा की कुव्वत से आगे बढ़ते रहूंगा। What he's actually meaning is, इसका मतलब क्या है? he is depending upon this continual strength of the Lord. मुसलसल मिलने वाली खुदा की कुव्वत का जिक्र वो कर रहा है। That is why it is called as a sustaining strength. इसीलिए हम इस कुव्वत को बरकरार रखने वाली कुव्वत कहते हैं। The strength of the Lord is first of all a fear dispelling strength. खुदा की कुव्वत पहले में डर को मिटा देने वाली कुव्वत है। Secondly, it is a girding strength, making you strong. दूसरी बात यह है कि खुदा की कुव्वत हमें कमर बस्ता करने वाली कुव्वत है। Thirdly, it is a sustaining strength and a continual strength. और तीसरी बात यह है कि खुदा की कुव्वत हमें बरकरार रखने वाली कुव्वत है। Why this sustaining and continual strength? हमेशा हमें बरकरार रखने वाली यह कुव्वत हमें क्यों चाहिए? How often do we battle and fight with our enemy? हमारे Satan?
Satan हमारे मुखालिफ सातान से हम कितनी बार जंग छेड़ते हैं, day in and day out. हर दिन सुबह रात। He does not spare us even in our sleep also हमारे sometimes. कभी कभार हमारी नींद में भी वो हमें छोड़ता नहीं है। 24/7 into 365 or 366. 24/7 into 365 और 366 Ah. जंग छेड़ता है। Constantly is raging a battle against us. मुसलसल वो हम पर जंग छेड़ता ही रहता है। And for that we need continual strength of the Lord. और इसके लिए खुदा की कुव्वत हमें मुसलसल चाहिए। We don't have to keep on asking the Lord. बार बार खुदा से पूछने की जरूरत भी हमें The नहीं है। Lord knows our need and our predicament. हमारी जरूरत और हमारी हाजत से खुदा वाकिफ है Accordingly, he continues to strengthen us. और इसीलिए वो मुसलसल हमें कमरबस्ता करते ही रहता है। And those who depend and trust in the Lord and depend upon the strength of the Lord, और जो भी खुदा की कुव्वत पर मुबनी रहते हैं, they are those who are able to prevail over the enemy with strength. वो लोग कुव्वत के साथ दुश्मन पर गालिब आते हैं। And then fourthly, और चौथी बात, it is also a subduing strength of the Lord. खुदा की कुव्वत जो है दुश्मन को सबजू करने मतलब उसको हराने की कुव्वत है। We read in 2 Samuel chapter 22 and verse 40. 2 Samuel chapter 22 verse 40 में हमने देखी है। Let's see what we read in the end of that verse, और वहाँ आखिर में हम क्या पढ़ते हैं जरा देखें। or the second part of that verse. या उसके सेकंड पार्ट में, Then that rose up against me has thou subdued under me. 2 Samuel chapter 22 verse 40. verse 40 सेकंड पार्ट। Second part. और मेरे मुखालिफों को मेरे सामने ज़ेर किया। See, he says, subdued under me. मेरे सामने ज़ेर किया है। He does not say he subdued and stopped there. उसको ज़ेर किया गया करके वो छोड़ता नहीं है वहां पे। If that is so, it is the work of the Lord. अगर ज़ेर किया जाता है तो वो खुदा का काम होता But है। the Lord strengthened David in such a manner that the enemy was subdued by the subduing strength under him, under David. लेकिन यहाँ मुराद ये है कि खुदा ने मुखालिफ को ज़ेर करने की ताकत दावीद को बख्शी और दावीद ने उसको ज़ेर की। So the strength of the Lord is a subduing strength. तो ये खुदा की कुव्वत जो है ये दुश्मन को ज़ेर करने वाली कुव्वत है। See the book of Nehemiah in chapter 9 देखें नेहमिया की किताब चैप्टर 9 and verse 24. और आयत नंबर 24 9:24। Book of Nehemiah chapter 9 and verse 24. नेहमिया की किताब 9 चैप्टर 9 और वर्स 24। Shall we all read this verse together? सब मिलकर ये पढ़ेंगे। So the children went in and possessed the land, and thou subduest before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gavest them into their hands with their kings and the people of the land, that they might do with them as they would. See what is mentioned here? यहाँ क्या लिखा हुआ है जरा देखें। Thou subduest before them the inhabitants of the land. इस मुल्क के बाशिंदों को मगलूब किया। This was the experience of the children of Israel. ये इस्राएलियों का तजुर्बा है। The Lord gave them the privilege of experiencing the subduing strength of the Lord. खुदा ने उनको दुश्मन को मगलूब करने की कुव्वत के तजर्बे को खुदा ने उन्हें बख्शा। It is a fear dispelling strength. डर को मिटाने वाली कुव्वत है। Secondly, it is a girding strength. दूसरी बात खुदा की कुव्वत कमर बस्ता करने वाली कुव्वत है। Thirdly, it is a sustaining strength of the Lord. तीसरी बात यह है कि खुदा की कुव्वत हमें बरकरार रखने वाली कुव्वत है। Fourthly, it is a subduing strength of the Lord. और चौथी बात खुदा की कुव्वत मगलूब करने वाली या ज़ेर करने वाली कुव्वत है। And there are many other things we can see. और बाकी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। We don't have time वक्त नहीं है because we have child dedication also. क्योंकि चाइल्ड डेडिकेशन भी है यहाँ पे। Now we move on to the New Testament. अब हम नए अहदनामे में चलेंगे। And there we find the strength of the Lord is a strengthening strength. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा की कुव्वत जो है वो हमें जोर बख्शने वाली कुव्वत है। By the strength by which we are strengthened, we are able to strengthen others. मतलब जिस कुव्वत से हमें कवी बनाया जाता है उस कुव्वत से हम दूसरों को भी कवी बना सकते The हैं। Acts of the Apostles and chapter 18 देखें आमाल की किताब बाब नंबर 18 and verse 23. और आयत नंबर
23, Acts chapter 18. 18 की 23, अमाल की किताब। Shall we read this verse also together? सब मिलकर ये इस आयत को पढ़ेंगे। Acts chapter 18 and verse 23. अमाल की किताब 18 की 23, सब मिलकर। Yes. और चंद रोज And after रहकर he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples. See what the man of God is doing? यहाँ खुदा का मर्द खुदा क्या कर रहा है? He's on his missionary journey. वो मिशनरी जर्नी में है। He's going from place to place. वो एक जगह से दूसरी जगह को जा रहा He's है। not just visiting the disciples and passing on, वो सिर्फ शागिर्दों को देखते हुए आगे नहीं बढ़ रहा है, not preaching and passing on, या उनको कलाम देते हुए आगे नहीं बढ़ रहा not है, just delivering the doctrine of the Lord and going forward. या खुदा का तालीम देकर आगे नहीं बढ़ रहा है। He was strengthening all the disciples. वो सब शागिर्दों को मजबूत करके आगे बढ़ रहा है, Because he himself was strengthened. क्योंकि वो खुद मजबूत किया गया था। That's what he mentions writing to Timothy. तिमोथी को लिखते हुए यही बात वो वहां सिखाता है। 2 Timothy and chapter 4 2 तिमोथी चैप्टर 4 and verse 17. और आयत नंबर 17। 2 Timothy chapter 4 and verse 17. 2 तिमोथी चैप्टर 4 और 17 All together. सब मिलकर। Notwithstanding, the खुदावन मेरा Lord stood मददगार with me था और उसने and मुझे strengthened ताकत me, बख्शी that by ताकि me मेरी the मारिफत preaching might पैगाम be की fully पूरी known, बना दी हो जाए that all और the सब Gentiles गैर might कौम hear, सुन लें and I was और मैं delivered शेर out of के the मुंह mouth से of the छुड़ाया गया। lion. See, the Lord stood with him and strengthened him. देखिए यहाँ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार था और मेरे साथ खड़े हुआ, And the strength was such, he was even delivered from the mouth of the lion. और वो जोर जो खुदावंद ने बख्शा वो इस तरह का जोर था कि वो शेर के मुंह से भी छुड़ाया गया So था। he was strengthened by the Lord, तो इस तरीके से खुदावंद से वो अपना जोर लेता है and he went on to strengthen others. और इस तरीके से दूसरों को भी वो मजबूत बनाने लगा This है। is the privilege and ministry the Lord has given to us. ये है खुदावंद जो खिदमत गुजारी हमें बख्शी है उसका हाल। How is our attitude to our fellow believers? हमारे बाकी बिलीवर्स के साथ हमारा रवैया कैसा है? Are we strengthening them? हम उनको मजबूत कर रहे हैं। Some people are talented in weakening the believers. कुछ लोग बहुत टैलेंटेड रहते हैं ये मोमिनों को कमजोर बनाने The में। little strength the believer has, they try to put it down. जो थोड़ी सी ताकत यीशु मोमिनों में रहती है उसमें भी उसको भी कमजोर बनाने की They कोशिश make करते हैं। them to flee from their spiritual battles. अपनी रूहानी जंग से लोगों को डरा के भगाते रहते हैं। But Paul was not like that. लेकिन पौलुस रसूल ऐसा नहीं थे। Encouraging and strengthening the believers to stand on the victory ground. यीशु मोमिनों को हमेशा ताकत बख्शते रहते थे, मजबूत करते रहते थे कि रूहानी जंग में कायम रहें। One more thing we see and close. एक और बात हम देखेंगे और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। We see that in the life of Samson. समसोन की जिंदगी में हम कुछ बातें What देखते was हैं। Samson doing? समसोन क्या करता था? In Judges chapter 16, काजी चैप्टर 16, गुजात चैप्टर we read 16, the sad state in which this mighty man Samson was. यहाँ पे ये सूरमा समसोन जो है वो किस दर्दनाक हालत में है हम देखते We हैं। all know about Samson. समसोन के बारे में हम He सब was a very वाकिफ हैं। strong man. बहुत ताकतवर इंसान था, He challenged many people, बहुत सारे लोगों को चैलेंज भी करता था। won many battles against the Philistines and others. फिलिस्तियों को और बाकी लोगों को जंग में वो हराता था, But he came into a defeat in his life. लेकिन अपनी खुद की जिंदगी में वो हार गया था। He lost his vision. अपना जो विजन था वो उसने छोड़ दिया था। If you read in chapter 16 of the book of Judges, अगर आप खुजात की किताब चैप्टर 16 देखेंगे, he lost his strength first of all उसने अपना जोर पहले खो बैठा because his था, hair was shaven. क्योंकि उसके बाल जो थे उनको लोगों ने शेव कर दिया Then था। they put out his eyes. He lost his vision. उसके बाद आंखें निकाल दिए, मतलब वो बीना नहीं था। And then thirdly, और उसके बाद he lost his liberty अपने आजादी खो बैठा उसने, because from being a champion, he was grinding in the prison. क्योंकि चैंपियन होने के नाते मतलब जंगजू होने के बजाय वो प्रिजन में वो चक्की पीसता था। He lost his freedom. अपनी आजादी उसने खो बैठी, He even lost his honor. अपनी इज्जत उसने खो बैठी। Who is grinding in the prison? चक्की कौन पीसता है जेल में? It is a judge who was a judge for 20 years in Israel. कौन पीस रहा है? जो
काजी रहा 22 years इसराइलियों के दरमियान, वो अब चक्की पीस रहा है। And as we go further in the same chapter, अगर हम इस बाब में आगे बढ़ेंगे, he brought dishonor to the Lord. उसने अपनी जिंदगी से खुदावंद के सामने बेइज्जती हासिल The की। Philistines were rejoicing that because they were able to conquer Samson. फिलिपी लोग जो होते थे, वो लोग बहुत खुशी मनाते थे क्योंकि समसोन हार गया। And at that time we remember what Samson did. तब उस वक्त हम जानते हैं कि समसोन ने क्या किया था। He lifted up his cry to the Lord. उसने अपनी आवाज खुदावन की तरफ बुलंद की। Oh, it was a very short prayer. वो तो बहुत छोटी सी दुआ थी। Ask for the Lord's mercy and compassion on him. खुदावंद की रहमत और उसका फजल अपने ऊपर और एक बार चाहा। Only one thing he requested the Lord. खुदा से एक ही बात उसने पूछा था, That was with regard to his lost strength. और वो बात ये थी कि मेरी कुव्वत मुझे वापस दे। He said, this once you strengthen me. इस एक बार मुझे फिर से मेरी कुव्वत वापस दे। Not 2 or 3 times. 2 या 3 बार की जरूरत भी नहीं है, Only this once. सिर्फ एक बार। Lord, have mercy on me. ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। Only once you strengthen me. एक ही बार मुझे और एक बार कुव्वतदार बना। The Lord heard that cry. खुदा ने उस आजिजी की आवाज सुनी। The Lord heard that prayer. खुदा ने उस दुआ सुनी। And what did the Lord do? और खुदा ने क्या किया? He did strengthen him. उसने समसोन को और एक बार मजबूत किया। What is the strength? और ये ताकत किस तरह की ताकत It है? is a restored or restoring strength. ये बहाल करने वाली ताकत है। How strong are we today? आज हम कितने ताकतवर हैं? How victorious we are today. आज हम कितने ही फतेहयाब हैं? Lord wants us to be champions. खुदा चाहता है कि हम जीतने वाले रहें। Lord wants us to be strong. खुदा चाहता है कि हम मजबूत रहें। The word of God says, be strong in the Lord. खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद में मजबूत रहें। Be strong because of the strength of the Lord. खुदावंद की ताकत के मुताबिक हम मजबूत But there रहें। are times we lose our strength. कभी कभी ऐसे वक्त भी होते हैं कि हम अपनी कुव्वत खो बैठते Many हैं। times we are also like Samson. बहुत सारी बार हम भी समसोन की तरह बन जाते हैं। If that is so, अगर ऐसा है, if that is our condition, अगर हमारी हालत ऐसी we है, can have this strength restored. ये कुव्वत जो है फिर से हम वापस पा सकते We हैं। don't lose our strength once and for all. हमारी कुव्वत हम हमेशा के लिए तो खोते नहीं हैं। The strength is restored unto us. ये कुव्वत फिर से खुदा हमारे लिए बहाल कर देगा, Because our Lord is a great restorer. क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए हमको फिर से बहाल करने वाला खुदा है। Restorer of our joy. हमारी खुशी को बहाल करने वाला खुदा है। Restorer of our peace. हमारा अमन और इत्मीनान को फिर से बहाल करने वाला खुदा है। Restorer of even our strength. हमारी कुव्वत को भी बहाल करने वाला But खुदा for है। that we need to pray to the Lord. और इसके लिए हमारे खुदा के पास आकर हमें दुआ करना Like है। Samson, we must say, Lord, you strengthen me once. और समसोन ने ऐसा ही किया था, खुदावन एक बार मुझे फिर से And, कवि बना। and our strength will be restored. इस तरीके से हमारी कुव्वत And जो है, we जोर know- है, फिर से बहाल किया जाएगा। We know what Samson did and accomplished. समसोन ने फिर से क्या किया था, क्या हासिल किया था, हम He जानते slew हैं। more people than during his lifetime. उसने अपनी जिंदगी में जितने लोगों को उसने फना किया था, उनसे भी ज्यादा लोगों को उसने उस वक्त ही एक ही दफा फना किया In the था। Lord's restoration, there is no decrease. खुदा की बहाली में कमी नहीं रहती, There is always an increase. हमेशा बढ़ोतरी या अजाफा रहता है। So this is the strength with which the Lord is able to strengthen us. इस तरीके से, इस कुव्वत से खुदा हमें मजबूत करता है। So may the Lord bring us into such an experience. इस तरह के तजर्बे में, एहसास में खुदा हम सबों को लाए। May these things that we meditated upon be our experience in the days to come. आज के दिन जो कलाम हमने मुताला किया है, आने वाले दिनों में ये हमारा तजर्बे में The तब्दील strength हो। of the Lord is a fear dispelling strength. मतलब पहली बात, खुदा की कुव्वत जो है वो डर को मिटा देने वाली कुव्वत है। It is a girding strength. ये हमें कमर बस्ता करने वाली कुव्वत है। It is a continual and sustaining strength. ये हमें बहाल करने वाली कुव्वत है। It is a subduing strength. ये दुश्मन को जेर करने वाली कुव्वत It है। is a strengthening strength. ये हमें मजबूत करने वाली कुव्वत है It is a restoring strength. और हमें बहाल करने वाली कुव्वत है। So in the light of the word of God,
तो खुदा के इस कलाम के नूर में let us examine this evening how our strength is. हमारी जिंदगियों में खुदा की कुव्वत कैसी है, एक हाँ। बार हम परख लेंगे। We have to be strong and experience victories in our lives. हमारी जिंदगियों में हमें भी बहुत बड़े जंग को जीतकर फतेहयाब रहना है। Not saying strong and leading defeated lives. हमें जंग हार कर उसमें हार में मजबूत नहीं बनना। If you are experiencing defeats in your life, अगर आपकी जिंदगी में अगर आप हार रहे हैं, that is because you are not strong. इसकी वजह है कि आप मजबूत नहीं हैं। The Lord is able and willing to make you strong again. खुदा आज भी मौजूद है और वो चाहता है कि आपको फिर से मजबूत बनाए। We know how Samson became weak समसोन किस तरीके से कमजोर हुआ था, हम जानते हैं। because of his sin and defilement. उसकी जिंदगी में जो गुनाह था, उसकी वजह से वो कमजोर बना If you are था। given place for sin and defilement in your life, अगर आपकी जिंदगी में आपने भी गुनाह को जगह दिया है, it is the right time before taking part in the Lord's table to set things right. तो यही सही मौका है कि खुदा की इस मेज में हाथ डालने से पहले आप अपनी जिंदगी को सुधारें। The Lord is willing and more than happy to forgive and also to restore. खुदा चाहता है कि हमें फिर से बहाल करे और मजबूत बनाए। And this restored strength is no less. और उसकी बहाल करने वाली कुव्वत जो है वो कम नहीं रहती, It is an increasing measure. वो हमेशा बढ़ने वाली कुव्वत है। May the Lord make it as our experience. खुदा हमें इन बातों को हमारा तजुर्बा खुदा बनाए।